Hello everyone, welcome to my channel Education to Awareness, and we are continuing our thermodynamics lecture. We have already studied system, surrounding, universe and also types of system. ठीक है, तो हमारा ऊष्मा गतिकी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पहले ऑलरेडी निकाय क्या होता है, परिवेश क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है और निकाय के प्रकार कितने तरह के हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि हमारे थर्मोडायनेमिक्स में जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं। सो एज यू कैन सी दैट macroscopic and microscopic viewpoint. Now these are the two approaches also you can see, or two viewpoints for thermodynamics, the behavior of matter. Okay, so as you know that in thermodynamics we study the behavior of matter, so this can be studied in two types. Now first type is macroscopic and second is microscopic. In the coming lecture we are going to discuss both these two in detail. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में जैसा कि हम और चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि जो हम इसकी जो स्टडी करते हैं, इसका जो अध्ययन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका जो आपका अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी का, ये दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पहला हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं स्थूल, और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं सूक्ष्म। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो यानी बड़ा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो यानी कि छोटा। ठीक है, तो स्थूल यानी कि जो बड़ा हो, है ना, यानी कि एक बड़े लेवल पे हम स्टडी करें, और माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म, यानी कि जो बहुत ही स्मॉल, सूक्ष्म यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हम उसको स्टडी करें। ठीक है, उसका अध्ययन करें। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऊष्मागतिकी के दृष्टिकोण हैं। ठीक है, किसी मामले के व्यवहार को दो स्तर पर अध्ययन किया जा सकता है ना। तो जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की ऊष्मागतिकी का अध्ययन करेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऊष्मागतिकी का जो अध्ययन है वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला जो प्रकार है वो मैक्रोस्कोपिक है ना, स्थूल बड़ा। दूसरा प्रकार जो है माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म छोटा। So discussing in detail, first of all we are going to start with macroscopic. Okay, it is also known as classical thermodynamics. Okay, in this approach we consider certain quantity of matter without taking into account its molecular level. So we are considering the matter as whole. You know, matter is made up of number of molecules and atoms. So when we are studying macroscopic, we are not considering the atom, we are not considering the molecule, we are considering the matter as a whole. So the whole matter is taken into account, its molecular level is not considered. Now this macroscopic approach to study thermodynamics does not require knowledge of the behavior of individual particle. So you are not required to study individual particles. Like I told you that matter is made up of individual molecules. So you can study the properties of the molecules or you can study the properties of the matter as a whole. So when you are studying the properties of the matter as a whole, this is known as macroscopic. Okay, macroscopic thermodynamics is only concerned with effects of the action of many molecules, you know, combining the effect of many molecules. We are not going to study single or individual molecule. And the most important thing is, which you have to remember, these effects can be perceived by human senses. See, when you see the matter, you know, yet you cannot see the molecule or you cannot see the atom. So we experiment and we see through microscope and different experiment we come to know about molecules and atom. But when you see any object, any solid, liquid or gas, you cannot see its molecules. So the properties of molecules also you cannot feel. Okay, but whatever you can see, you can feel that.
Okay, suppose there is a matter, suppose there is a table here. Okay, you can touch this table, but you cannot touch the molecules of this table. Okay, so this is the thing. In macroscopic approach, we see those properties which we can see, which we can feel. So this is the most important point. How you can differentiate between any property is that if you can see, if you can feel, that property will be a macroscopic property. ओके, मैक्रोस्कोपिक, इसे हम शास्त्रीय ऊष्मा प्रवैगिकी या ऊष्मा गतिकी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण में मामले की एक निश्चित मात्रा पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो एक आपकी निश्चित उसमें मात्रा होगी। ठीक है, बिना ध्यान में रखे आणविक स्तर पर होने वाली घटना, यानी कि हमने बताया था कोई भी आपका जो पदार्थ है, ठीक है, वो आपका अणु है ना, आपका मॉलिक्यूल से बना होता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे, अणु के लेवल पे भी कई सारी आपकी घटनाएं हो रही होती हैं, और जो आपका बाहरी उसकी जो सतह है उस पे भी आपकी कई सारी घटनाएं हो रही होती हैं। तो हमें जो सारा आपका स्टडी करना है, हमें जो सारा ऑब्जर्वेशन करना है, जो उसकी बाहर हो रही घटनाएं हैं उससे उसको स्टडी करना है। उसके अणु के लेवल पे क्या क्या, अणु के स्तर पे क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम यहाँ पे नहीं देखते हैं। हमारा मैक्रोस्कोपिक या फिर जिसे हम कह रहे हैं हमारा स्थूल दृष्टिकोण। ठीक है, तो यह ऊष्मा प्रवैगिकी के अध्ययन के लिए मैक्रोस्कोपिक दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्तिगत कणों के व्यवहार का ज्ञान। ठीक है, अब आपको वही हमने बताया कि व्यक्तिगत जो उसके कण हैं उनका ज्ञान आपको जरूरी नहीं है। आप मैटर को एज अ होल एक पार्ट ट्रीट करके उसकी हेल्प से उसकी जो भी स्टडी है, उसका जो भी एक्सपेरिमेंट है, उसका जो अध्ययन है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स केवल कई अणुओं की कार्रवाई के प्रभाव से संबंधित है। तो यहाँ पे वही बात हुई, ऐसा नहीं है कि हम एक, जैसे हमने बताया पदार्थ है, मैटर है, तो उसमें कई सारे आपके अणु होंगे, तो हमें एक एक अणु को अलग अलग नहीं देखना है भाई। हम चाहें तो एक एक अणु को अलग अलग भी देख सकते हैं, यही हम आगे देखेंगे। हमारा माइक्रोस्कोपिक में आएगा, माइक्रोस्कोपिक जो सूक्ष्म वाला है उसमें एक एक अणु अलग अलग देखेंगे, मगर यहाँ पे कई सारे अणु के प्रभाव हम एक ही साथ देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो हम प्रभाव देख रहे हैं ये प्रभाव ऐसे होते हैं जो मानव इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी चीज को आप टच करते हैं, वो गर्म है, ठंडी है ना, वो उस पर दबाव कितना है, तो ये चीज आप अपने हाथ से महसूस कर सकते हैं। मगर जैसे एक मॉलिक्यूल है, अणु है, तो उसको देखने के लिए अगर सपोज करिए हम आपसे कहें कि आपके पास एक सपोज करिए वुड का पीस है, ठीक है, तो उस वुड के पीस को आप देख के बता सकते हो, उठा के बता सकते हो कि लगभग उसका वजन आपका कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से वेट उसका कितना है, प्लस आपका उसको टच करके आप बता सकते हो कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, तो इस तरह की आपकी चीज़ें है ना, उसका टेम्परेचर लगभग कितना है ना, गर्म है, ठंडा है, जो चीज़ें आप अपनी है ना, जो मानव इंद्रियां हैं उनसे महसूस कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपकी जो होती है ये मैक्रोस्कोपिक जो आपका अप्रोच है, स्थूल आपकी जो दृष्टिकोण है उसमें आपका आ जाता है। ठीक है, मगर अब हम आपसे कहें कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका जो मॉलिक्यूल है, अणु है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आप बताइए। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे देख के नहीं बता सकते, वो तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया जा सकता है कि हाँ इतनी स्पीड से ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, तो है ना ½ mv² लगाएं तो ये आपकी उसकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी गति ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, वो गतिज ऊर्जा उसकी हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपसे कहें कि मॉलिक्यूल्स उसमें कितनी कितनी डिस्टेंस पे हैं, बताइए, नहीं बता सकते हैं, है ना। लकड़ी के अगर हम छोटे छोटे पीसेस कर दें तो वो पीसेस हमें क्योंकि दिखाई दे रहे हैं तो हम बता सकते हैं वो कितनी कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने आपका कहा कि मॉलिक्यूल्स बताइए तो आप मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ही ध्यान रखना होगा कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है ना, यानी कि स्थूल आपका जो दृष्टिकोण है उसमें आपकी वो आपकी जो अध्ययन आएगा है ना, वो अध्ययन आएगा जो आप मानव इंद्रियों से आपका महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जो मानव इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते हैं वो अध्ययन जो है हमारा चला जाता है माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म दृष्टिकोण में।
ठीक है. द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ अजम्पशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मैटर. Okay, so what is the nature of the matter? That is not important in the macroscopic observation. Okay, so example, if you talk about what can be example of macroscopic approach, a moving car. So you can see actually a car is moving. We are not talking about its molecule, we are not talking about its atom, we are seeing the car as a whole, and the car is moving. A falling stone from a cliff. So if you drop a stone, you can see that a stone is actually falling. But if I ask you, can you see the molecule of the stone? You will say, no, I cannot see the molecule of the stone directly. So if you drop a stone, okay, if you pour some sugar in a glass of water, so that will be example of macroscopic. You can see the sugar particles that are going inside the glass. Okay, the experiments you do in chemistry, you pour something in the beaker, you pour a chemical in the beaker, you mix two chemical, you can see those things. These all comes under the macroscopic observation. ठीक है. तो मैक्रोस्कोपिक अवलोकन पदार्थ की प्रकृति के बारे में मान्यताओं से पूरी तरह से स्वतंत्र है. ठीक है. तो उसकी जो पदार्थ की जो प्रकृति है उसके बारे में कोई भी मान्यता इसमें आपकी जो है कंसिडर नहीं करी जाती है. ठीक है. तो अब हम उदाहरण के रूप में बात करते हैं. तो एक चलती कार है ना, एक कार अगर आपकी जा रही है तो आप उस कार को चलता हुआ देख सकते हैं, मूव करता हुआ देख सकते हैं. ठीक है. उसी तरह से सपोज करिए एक आपका पत्थर है. ठीक है. तो अगर एक पत्थर हम एक गिराएं है ना एक चट्टान के ऊपर से, तो आप देख सकते हैं वो पत्थर किस तरह से आपका होता हुआ नीचे जा रहा है, ग्रेविटी किस तरह से उसको नीचे खींच रही है ना. एक पत्थर अगर आप पानी में डालें तो आपको दिखेगा किस तरह से है ना. अगर आपने जो पत्थर था वो अगर आपका एक पहाड़ी से फेंका था तो उसकी स्पीड नीचे गिरने की क्या होगी, तेज होगी. वही पत्थर अगर आप पानी में डालेंगे तो उसमें उसकी जो आपकी स्पीड होगी वो कम हो जाएगी. तो ये सारे जो आपके है ना आपके अध्ययन है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं है ना. वो आप चीजें आपका देखकर उसको महसूस कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इस तरह के जो भी आपके अध्ययन होते हैं वो आपके माइक्रोस्कोपिक में आ जाते हैं. केमिस्ट्री लैब में आप दो केमिकल्स को मिलाते हैं बीकर में, टेस्ट ट्यूब में है ना, परख नली में डालते हैं तो मिक्स होता है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं है ना. मगर अब उसमें हम सपोज करें कि दो केमिकल आपने मिक्स किया, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या हुआ आप ये देख के नहीं बता सकते. मगर आपको पता होगा कि हाँ ए केमिकल ये है, बी केमिकल ये है, और आपको पता होगा ए प्लस बी पे है ना क्या होता है, तो वो आप है ना उससे बता सकते हैं. मगर देख के आप नहीं बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स अंदर किस तरह से रिएक्ट करें. मगर हाँ ये आप देख सकते हैं कि दो केमिकल हैं, मिक्स हुए, पहले उनका क्या कलर था, बाद में क्या कलर हो गया. तो ये जो हम है ना ऑब्जर्वेशन से, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जो ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम है ना मानव इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं. ठीक है. कि जब आपका केमिकल मिलाने से पहले उसका आपका जो केमिकल था उसका टेम्परेचर क्या था, जब आपने दो केमिकल मिलाए तो क्या तापमान बढ़ गया, तापमान उतना ही रहा, तापमान घट गया. ठीक है. तो जो चीजें ऐसे कलर वगैरह हुआ, चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो जो चीजें आप देख सकते हैं, जो चीजें आप महसूस कर सकते हैं अपनी मानव इंद्रियों से, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच या अपनी कह सकते हैं स्थूल दृष्टिकोण में आपकी आ जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम आगे माइक्रोस्कोपिक और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स. So if you remember, macroscopic is known as classical thermodynamics, microscopic is known as statistical thermodynamics. Okay, from microscopic point of view, we consider matter is composed of large number of small molecules and atoms. So as I told you, now we are going to actually study the molecule, we are going to actually study the atoms. We are not considering matter as a whole, we are considering that matter is made up of molecules and atoms. Okay, this microscopic approach to the study of thermodynamics require knowledge of the behavior of individual particle. Now in case of molecule, as I already told you, there is nothing that you can see, there is nothing that you can feel. So it is important, if you are studying on the microscopic approach, you are studying on the molecular level, then you should know what is the behavior of the molecule
for the individual particle. So this is the knowledge that is required from before, that you already know how does a individual molecule behave when you are going to conduct any experiment on it. Okay, the microscopic thermodynamics is concerned with the effects of action of many molecules and these effects cannot be perceived by the human senses. So as I told you that this is the most important part. Now it considers the molecules, okay, but the effect of these molecules cannot be perceived by the human senses. So when I told you, suppose you know that there is a suppose anything you can take, for example a wooden box and an iron piece. Okay, so already you have studied in chemistry, you know that in every matter, in every thing, the molecules are there and the molecules are in a state of continuous vibration. Okay, but when you touch an object, if you touch a wooden box or if you touch a metal object, you cannot feel the vibration of the molecules because it is at a very microscopic level that cannot be felt by the human senses. But through experiments we know that actually the molecules of the matter vibrate. So this is the important point. Whatever things we study, we have to have knowledge of it regarding the behavior of the molecules from before, and whatever the changes are occurring at the molecular level, we will come to know by experiment on observation, which cannot be perceived by human senses. We will require some kind of setup, we will require some kind of machines that will record it. Okay, but you have to remember microscopic viewpoint says that the outcome from the experiment cannot be perceived, cannot be felt by the human senses. You cannot see molecules, you cannot feel molecular vibration. Okay, ठीक है, तो सूक्ष्म दृष्टिकोण, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे आपका सांख्यिकीय ऊष्मा प्रवैगिकी है ना, आपका सांख्यिकीय कहते हैं, स्टैटिस्टिकल से वर्ड आया है ये आपका, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सूक्ष्म दृष्टिकोण से पदार्थ बड़ी संख्या में छोटे छोटे अणुओं और है ना परमाणु से बना है, ठीक है। तो ज्ञान की आवश्यकता वाले थर्मोडायनेमिक्स के अध्ययन के लिए यह सूक्ष्म दृष्टिकोण व्यक्तिगत कणों का व्यवहार, ठीक है। अभी तक क्या था कि हमारा जो आपका स्थूल आपका दृष्टिकोण था, स्थूल दृष्टिकोण में हम ये देख रहे थे कि हम पूरा जो आपका पदार्थ है उसको एक साथ देखेंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि सूक्ष्म दृष्टिकोण में हम व्यक्तिगत कणों का व्यवहार देखेंगे। तो उस व्यक्तिगत कणों के व्यवहार के लिए उसकी ज्ञान की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो चीज़ आप देख नहीं सकते, जो चीज़ आप महसूस नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में आपको पहले से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उस पर अध्ययन कर पाएंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक है ना आपका थर्मोडायनेमिक्स की कई कार्रवाई के प्रभाव से संबंधित हैं अणु, और इन प्रभावों को मानव इंद्रियों द्वारा नहीं माना जा सकता या उनसे आपका महसूस आपका नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जैसे वही चीज़ है कि कई सारे जो आपके अणु हैं उनका हमें कलेक्टिव है ना आपका इकट्ठा उनका जो आपका बिहेवियर है, यानी कि उनका जो व्यवहार है वो हमें देखना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हमने बताया था कि कोई आपका अणु हो, आप पहले पढ़ चुके हैं, ये कोई एग्जाम्पल ले लें, एक लकड़ी का आपका बॉक्स ले लें या एक आयरन का पीस ले लें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लकड़ी का बॉक्स या जो आयरन का पीस है उसके मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आपको पता है हर एक मैटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस वाइब्रेशन में होते हैं, कंटिन्यूसली वो क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। मगर अगर आप उस लकड़ी के टुकड़े को छुएंगे या फिर उस आपका मेटल के पीस को आपका टच करेंगे, वो वाइब्रेशन आप नहीं फील कर सकते हैं, ठीक है। मगर जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये वेरीफाई कर सकते हैं, उस चीज़ को है ना एक एनिमेशन वगैरह से शो कर सकते हैं कि आपका जो
वाइब्रेशन है वो आपका अणु का आपका हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज वो हैं जो आप अपनी इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते हैं, जो आपके अणु के स्तर पर हो रही है। Okay, now microscopic observation are completely dependent on the assumption regarding the nature of the matter. So macroscopic does not depend on the assumption regarding the nature of a matter, but microscopic depends on the assumption regarding the nature of the matter, because in microscopic you cannot see, you cannot feel those effects that are happening, so you must have certain assumptions that how the matter is going to behave in certain condition. Okay, so now example will be individual molecule present in the air. So suppose in the room, if I take a deodorant, if I take a spray and press it, now the molecules of the deodorant, of the spray will spread in the room. Okay, now you cannot see that the molecules, where the molecules are going, you cannot see the individual particles of the deodorant, but you know that since the behavior is that the spread will be uniform, so from that behavior you know that the molecule will go from each and every part of the room. So from here we required that what are the assumptions regarding the nature of the matter. So these assumptions are required for studying the microscopic. So because you cannot see, therefore you should know the assumption, you should not know the rules according to which the matter is going to behave. So when you suppose take these air molecules and you put in vacuum, you know that the air molecules are going to spread in the entire vacuum. So whatever be the things at the molecular level, you should know about it from before, so that you can conduct experiment regarding the microscopic level. ठीक है, सूक्ष्म अवलोकन पदार्थ की प्रकृति के बारे में मान्यताओं पर पूरी तरह से निर्भर है। ठीक है, तो ये सारा आपकी ऑब्जर्वेशन मान्यताओं पे रहेगी, क्योंकि जब आप उसको देख नहीं सकते हैं, जब आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मान्यताओं के आधार पर ही करनी पड़ेगी, कि जो उसके रिगार्डिंग उसकी मान्यता है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर जैसे व्यक्तिगत अणु हवा में मौजूद होते हैं जिनको आप नहीं देख सकते हैं। जैसे एक और आपका उदाहरण ले लें कि अगर हम एक डिओड्रेंट लें और डिओड्रेंट को स्प्रे करें, ठीक है, तो अब डिओड्रेंट की स्प्रे जब शुरुआत में तो आपको दिखता है कि कुछ पार्टिकल्स निकले, मगर उसके बाद वो स्प्रेड हो गए। ठीक है, तो अब अगर हमें मान लो नहीं पता है, तो हो सकता है हम सोचें कि जो मॉलिक्यूल्स निकले हैं वो अगर एक रूम में हमने डाला है उसको, तो वो केवल एक कोने में रहेंगे, मगर आपको पता है कि वो जो खुशबू होती है, जो उसकी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पूरे रूम में आपके स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें एक्सपेरिमेंट से पता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स जब आपके जाते हैं तो वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं रहते, पूरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे लिक्विड हमें पता है, लिक्विड को हम जिस बर्तन में डालेंगे उसी शेप का आपका द्रव जो होता है वो हो जाता है। ठीक है, गैस मान लीजिए आपका है ना, उसको अगर हम कंप्रेस करके एक डब्बे में रख दें, ठीक है, तो उसमें उसका जो प्रेशर होता है वो आपका बढ़ जाता है, वो मॉलिक्यूल्स उसके पास आ जाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए गैस का एक आपने कोई डब्बा लिया, उसमें आपकी गैस है और उसको उसमें दबा के आपने रख दिया। ठीक है, तो आप जो उसका प्रेशर है वो हाथ से महसूस कर सकते हैं। वो प्रेशर जो है वो आपका क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक हो गया, यानी कि स्थूल हो गया। मगर अब आपको जो आपका अध्ययन यानी कि आपकी जो ज्ञान है उससे पता है कि जब किसी उस पर आपका दबाव बढ़ाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। अब आपने वो आपका दबा के उसको रखा है ना, और उसका जो प्रेशर है वो बढ़ गया है। ठीक है, मगर आप ये नहीं देख सकते हैं कि उसके मॉलिक्यूल पास पास आ गए, मगर आपको आपके अध्ययन से पता है, यानी कि ये सूक्ष्म अवलोकन आ जाएगा, यानी कि सूक्ष्म अध्ययन आ जाएगा कि आपको अध्ययन से पता है कि उसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। तो उस आधार पे है ना, उस मान्यता पे आप ये चीज कह सकते हैं कि ठीक है, दबाव तो हम हाथ से महसूस कर रहे हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक यानी स्थूल हो जाएगा, और जो उसके अणु पास पास आ जा रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे गुण। ठीक है,
When we talk about properties, we are referring here as thermodynamic properties. Now the thermodynamic properties are divided into two parts: intensive properties and extensive properties. Now what is the difference? Intensive properties are those properties that are independent of the mass of the system. Now the properties of the thermodynamics are defined on the basis of mass. Okay, those properties which will depend on the mass will be known as extensive properties. Those properties which will be independent of the mass will be known as intensive properties. For example, suppose you take a room. The room is full of air. Okay, now you divide the room into number of small and large parts. Now you see the properties as, suppose, pressure, temperature, volume. Now if for each part the particular properties remain same, then that will be an intensive properties. Suppose temperature, if the temperature of the whole room is same, then each part, whether it is small or it is large, the temperature will be same in each part. The pressure, if there is atmospheric pressure, the pressure in each part will be same as atmospheric pressure. But if I talk about volume, volume of each part will be different, mass of each part will be different. Now the things that are different, which depends, are known as extensive properties. Which does not depends, which are independent, are known as intensive. For remembering, you can remember intensive, independent. Okay, this is rhyming, intensive, independent. Okay, and extensive will be opposite, that will be dependent. Therefore intensive properties are those that are independent of the mass of the systems. Example is temperature, pressure, density. It will not depend on the mass. Extensive properties are those whose value depend on the size, mass, extent, area of the system. Total mass, total volume, momentum are some example of extensive property. Momentum, as you know, suppose if I hit you with something, mass and velocity combine in a combined way, it forms a momentum. So if I take two balls, one is of 10 gram and one is of 1 kg, and I hit it with you. Okay, so suppose 1 kg ball you will feel the pain, and 10 gram ball you will not feel. So that is the momentum. It is depending on the mass. If the mass is more, the effect will be more. If the mass is less, the effect will be less. So this is the intensive and extensive properties for a thermodynamic system. हिंदी में हम इसे कहते हैं गहन गुण और उत्कृष्ट गुण. ठीक है, तो गहन गुण, ठीक है, जो किसी प्रणाली के द्रव्यमान से स्वतंत्र होते हैं. ठीक है, कि वो द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेंगे, मास पे डिपेंड नहीं करेंगे, जैसे तापमान, दबाव और घनत्व. उत्कृष्ट गुण वो गुण होते हैं जिनके मूल्य, आकार या सीमा पर निर्भर करते हैं. ठीक है, ऐसी है ना, करते हैं. और जो भी उसकी आपकी जो सिस्टम होगा, प्रणाली होगी, उसका जब आपका सीमा, आकार या द्रव्यमान बदलेगा तो उसके आधार पे उत्कर्ष गुण भी बदल जाएंगे. ठीक है, कुल द्रव्यमान, कुल आयतन और कुल गति इसके कुछ उदाहरण हैं जो कह सकते हैं हमारे उत्कर्ष गुण या व्यापक गुण भी इन्हें कहा जाता है. ठीक है, तो इसमें देखिए, जैसे सपोज करिए एक आपका कमरा है. ठीक है, उस कमरे में अगर आप क्या करें, उस कमरे को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो जो गुण उसको पार्ट्स में डिवाइड करने पर आपके चेंज नहीं होंगे वो गहन गुण हो जाएंगे, और जो गुण आपके चेंज हो जाएंगे, है ना, वो उत्कर्ष गुण हो जाएंगे. जैसे अगर हम बात करें तापमान, तो तापमान अगर पूरे कमरे का एक है तो किसी भी पार्ट में आप देखेंगे तो तापमान वही सेम रहेगा. दबाव, प्रेशर देखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हर पार्ट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा. मगर अगर हम आपसे कहें हर पार्ट में जो एयर का वॉल्यूम है, तो अगर, है ना, हमने छोटे बड़े पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं तो वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा. हम कहें उसमें एयर का मास, वो भी आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ें बदल जाएंगी, है ना, आपका पार्ट्स में डिवाइड करने पे, वो चीज़ें जो हैं वो आपके उत्कर्ष
गुण हो जाएंगे, और जो चीज़ें नहीं बदलेंगी, है ना, पार्ट्स में डिवाइड करने पे, है ना, जो आपके गुण, जो प्रॉपर्टीज नहीं बदलेंगे वो गहन गुण हो जाएंगे। अब एक पार्ट हमारा आ जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज per unit mass are called specific properties. Now extensive properties are those which depend on the mass, but what we do in order to convert into a specific property, we divide it with the mass or with the volume so that it becomes a specific property. Like I told you that volume, if we take suppose if we take a piece of wood and we cut it into multiple parts, small, big, okay, so every part will have different weight. But if I ask you mass per unit volume, so the mass per unit volume for each block will be same. Suppose it's the 1 kg block and I have cut it into 200 gram, 500 gram and 300 gram, three parts. Okay, now if we check for each part, if we take the mass and we take its volume and divide it, so for 200, for 300 and for 500, mass per unit volume will be same. So this is known as specific property. Example is specific volume, we divide volume by mass. Okay, specific total energy, we divide the energy by mass. So either mostly we divide by mass, we can also divide it by volume. So this will be known as specific property if we divide a property with its mass or volume. ठीक है, तो प्रति यूनिट द्रव्यमान के व्यापक गुणों को विशिष्ट गुण कहा जाता है। तो अगर आपके पास कोई आपका जो गुण है, उसको अगर आप उसके द्रव्यमान से क्या कर दें, भाग दे दें, तो जो हमें मिलता है वो हमें विशिष्ट गुण मिलता है। तो जैसे हमने बताया था कि आपके जो गुण होता है, वो जो गुण आपके जो मास पे डिपेंड करते हैं, तो अगर मास पे यानी कि द्रव्यमान पे डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं, तो अगर उसी मास से उसको डिवाइड कर देंगे तो फिर वो उस पर आपका निर्भर नहीं रह जाएगा। जैसे सपोज करिए 1 किलो की हमारे पास लकड़ी है, उसको हमने 200 ग्राम, 300 ग्राम और आधा किलो में आपका बांट दिया। ठीक है, तो अब देखिए तीनों का मास अलग अलग है, मगर अब तीनों का जो मास है और तीनों जो छोटे बड़े टुकड़े हैं उनका आपका हम आयतन निकालें और मास को उसके आयतन से डिवाइड कर दें या आयतन को उससे मास से डिवाइड कर दें, तो तीनों के लिए आपको पता होगा कि तीनों के लिए जो आपका अनुपात आएगा वो आपका एक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मास को क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। तो इस वजह से आपका जो द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात है वो सेम आएगा। इसी अनुपात को हम कहते हैं विशिष्ट गुण। जब हम कभी भी किसी गुण को उसके आपके द्रव्यमान से या उसके आयतन से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो ऐसे गुण को हम कहते हैं विशिष्ट गुण। उदाहरण के तौर पे आपका विशिष्ट मात्रा, जिसमें हमने आयतन को हमने वॉल्यूम बाय मास, आयतन को हमने मास से डिवाइड कर दिया है। उसी तरह से विशिष्ट कुल ऊर्जा, अगर हम ऊर्जा को मास से डिवाइड कर दें तो वही चीज हमारी अब जो आपकी कुल ऊर्जा थी वो बन जाती है विशिष्ट कुल ऊर्जा। तो ध्यान रखेंगे, जो विशिष्ट गुण या विशिष्ट किसी भी साथ यूज करते हैं, इसका मतलब है हमने उसे उसके मास से या उसके आयतन से भाग दे रखा है। तो ठीक है, ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपके जो वीडियोस के फ्यूचर अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, वो आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।